میں نے ہراسمنٹ کا سامنا کیا، مجھے ہراس کیا گیا۔ ہماری فیلڈ میں تو ہراسمنٹ زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ ان کی بات نہ مانیں تو سینئرس آپ کو کام سے نکال بھی دیتے ہیں۔ بہت ساری ایسی فیمیلس ہیں جو شروع کے دنوں میں ہی پریکٹس کو کنٹینیو نہیں کر پاتی ہیں۔ جو میرے رشتہ دار تھے وہ ابو کو یہی بولتے تھے کہ تم بیٹی کو پڑھا کے کیا کرو گے۔ میں اصل میں اپنے خاندان کی پہلی لڑکی ہوں جس نے تعلیم حاصل کی ہے۔ NGOs میں کام کرنا شروع کیا اور ٹیوشنز پڑھاتی تھی میں۔ کوئی تشدد زدہ عورت تھانے چلی بھی جاتی ہے تو فیملی پولیس جو ہے وہ اس عورت کو یہ کہہ کے واپس کر دیتی ہے کہ یہ فیملی کیس ہے تو اس پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ چائلڈ میرجز ہو رہی ہیں، ارلی چائلڈ میرجز، وہ تو ان کو بھی اوفینس کرائم کنسیڈر نہیں کرتے۔ میرا نام ماروی ہے اور پیشے کے اعتبار سے میں ایک وکیل ہوں اور اس وقت میں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہوں، اور ہماری ایک تنظیم ہے اپنی سندھ وومنس لائرس الائنس کی نام سے، اس میں بھی میں کام کرتی ہوں، اور وائلے کے نام سے بھی ایک تنظیم ہے جس میں جو ینگ وکلاء ہیں ان کے رائٹس کے لیے بھی میں کام کرتی ہوں۔ میری تعلیم میں مشکلات مجھے جب میں 8th تک تھی تو 8th تک تو مجھے فیملی سپورٹ کر رہی تھی، لیکن اس کے بعد جب میں 10th میں آئی تو میرے جو والدین ہیں، خاص کر کے میرے فادر، وہ چاہ رہے تھے کہ میں تعلیم کو آگے کنٹینیو نہ کروں، کیونکہ ایک فیملی پریشر ہوتا ہے رشتہ داروں کا۔ وہ جو میرے رشتہ دار تھے وہ ابو کو یہی بولتے تھے کہ تم بیٹی کو پڑھا کے کیا کرو گے، لیکن میری والدہ جو ہیں انہوں نے شروع سے مجھے بہت سپورٹ کیا۔ وہ چاہتی تھیں کہ میں جاؤں آگے پڑھوں اور انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا۔ پھر کراچی آنے میں مجھے بہت چیلنجز فیس کرنے پڑے، میرے فادر نہیں مان رہے تھے اور فائنلی پھر وہ مان گئے۔ میں نے انہیں منایا، میں نے انہیں پروف کیا کہ میں واقعی میں بھی پڑھنا چاہ رہی ہوں، مجھے آگے بڑھنا ہے، میں لائف میں کچھ کرنا چاہتی ہوں، مجھے سوسائٹی میں اپنی ایک شناخت بنانی ہے، میں چاہتی ہوں کہ لوگ مجھے میرے نام سے جانیں۔ پھر میرے فادر راضی ہو گئے، لیکن انہوں نے میرے لیے خاندان والوں کی، رشتہ داروں کی بہت باتیں سنی، لیکن وہ ایک مرد ہونے کے ناطے وہ پھر بھی ڈٹرمن رہے، انہوں نے ساتھ دیا میرا، اور میرا جو کراچی کا سفر تھا وہ مجھے خود لے کے آئے، انہوں نے مجھے ایڈمیشن دلانے میں مجھے بہت ہیلپ کی، تو انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا۔ تو والدین کی سپورٹ ایجوکیشن میں بہت ضروری ہے۔ تعلیم حاصل کرتے وقت مجھے فائنینشیل ایشوز کا بھی سامنا کرنا پڑا، گھر سے مجھے فائنینشیل سپورٹ تھی لیکن بہت مشکل سے ہو پاتا تھا وہ۔ تو پڑھائی کے دوران ہی میں نے NGOs میں کام کرنا شروع کیا اور ٹیوشنز پڑھاتی تھی میں، وہاں سے میری ارننگ شروع ہوئی، اور جیسے ہی پھر میں نے اپنی تعلیم ختم کی تو میں نے جابس کرنا شروع کر دی، اور اب بھی میں اپنے سروائیول کے لیے یہاں کراچی میں اکیلی رہتی ہوں، تو جو میرے اخراجات ہوتے ہیں وہ بھی میں خود سے بیئر کرتی ہوں اپنے۔ وکیل بننے کا فیصلہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ میں اصل میں اپنے خاندان کی پہلی لڑکی ہوں جس نے تعلیم حاصل کی ہے۔ میرے خاندان میں اب بھی لڑکیوں کی تعلیم پہ اتنا توجہ نہیں دی جاتی ہے، لڑکے کی تعلیم پہ دی جاتی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں، لڑکیوں پہ تو بالکل بھی نہیں۔ تو میرا شروع سے ہی مجھے تھا کہ مجھے آگے خود پڑھ کے کچھ بن کے عورتوں کے رائٹس کے لیے مجھے کام کرنا ہے، عورتوں کی حقوق پہ کام کرنا ہے، ان کی تعلیم پہ کام کرنا ہے، اور اب بھی میں اپنے خاندان میں جو لڑکیوں کی تعلیم ہے میں اس پہ کام کرنا چاہ رہی ہوں، اور جو گاؤں کی عورت جو ایک ڈومیسٹک وائلنس فیس کرتی ہے، جو اس کے رائٹس ہیں، بیسک نیڈس ہیں، وہ اسے نہیں مل پاتی ہیں اور وہ بہت سے مسائل کا شکار ہے، تو میں ان پہ کام کرنا چاہ رہی ہوں۔ یہ میرے ایک لائف کا موٹیو تھا، مقصد تھا جو میں شاید ایک وکیل بن کے پورا کر سکتی تھی، تو اسی لیے میں نے لاء کی فیلڈ چوز کی۔ پڑھائی کے دوران میں نے ہراسمنٹ کا سامنا کیا، مجھے ہراس کیا گیا، اور پھر جب پاس آؤٹ ہونے کے بعد اب جب
फील्ड में आते हो, बाहर निकलते हो अपनी काम करने की जगह पे, तो हमारी फील्ड में तो हरासमेंट ज़्यादा होती है। कहने को तो हम एक लॉ स्टूडेंट्स होते हैं या लॉयर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फीमेल्स के साथ बहुत वर्क प्लेसमेंट हरासमेंट होती है, तो उसका शिकार फीमेल्स बहुत होती हैं, बड़े तादाद में हरासमेंट का शिकार होती हैं। हमारी फील्ड में ऐसा होता है कि प्रैक्टिकल जो वर्क होता है वो हमें यूनिवर्सिटी में इतना नहीं सिखाया जाता। वो प्रैक्टिकल वर्क जो होता है कि केस को किस तरह से प्रोसीड करना है और कहाँ पे केस चलेगा, किस तरह से आपको उसकी तैयारी करनी है, आर्ग्यूमेंट्स किस तरह से करने हैं, वो सारी चीज़ें हमें एक सीनियर एडवोकेट के साथ काम करके, उसके साथ रह के वो सीखनी पड़ती हैं। तो उस दौरान जो है बहुत सारी फीमेल्स हरासमेंट का शिकार होती हैं, और अगर आप उनकी बात ना माने तो सीनियर्स आपको काम से निकाल भी देते हैं, फिर वो किसी और को रख लेते हैं। तो उस दौरान एक तो आप अपनी पढ़ाई पूरी करके बाहर निकले होते हैं और आपको अपने फिनांस की जो चीज़ें होती हैं, अपने अखराजात सारे खुद बर्दाश्त करने होते हैं, वो देखना होता है। और उस टाइम फ़िज़िकल हरासमेंट बहुत बुरे तरीके से, ख़ास करके जो लड़कियां होती हैं, फीमेल्स होती हैं, उनकी मेंटली हेल्थ जो है वो बहुत बुरे तरीके से असरअंदाज होती है और आप डीमोटिवेट हो जाते हो। और बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो शुरू के दिनों में ही प्रैक्टिस को कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं, इस फील्ड को आगे नहीं लेके जा पाती हैं, सिर्फ इस बिहेवियर की वजह से कि अब अगर ऐसा हो रहा है तो शायद आगे जाके और बुरा हमारे साथ हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ भी हैं, वो तो ज़्यादातर प्रेफर नहीं करती हैं कि उनकी जो लड़कियां हैं या बेटियां हैं वो इस फील्ड में आएँ, क्योंकि शायद मर्द होने के नाते उनको पता होता है कि इस फील्ड में क्या चल रहा है या ज़्यादातर प्रैक्टिस किस चीज़ की होती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कोई बुरी फील्ड है या सारे ही लोग ऐसे हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो लोग हैं वो इस तरह की प्रैक्टिस इस फील्ड में बहुत आम है। लेकिन सपोर्टिव लोग भी हैं, और मैंने किसी हद तक हरासमेंट फेस की शुरू वाले दिनों में, लेकिन मुझे अच्छे लोग भी मिले जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, आगे बढ़ाया, उन्होंने मुझे एक हिम्मत दी, हौसला दिया और आगे लेके आए मुझे। और अभी मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं उस हरासमेंट को फेस कर सकती हूँ, मैं उसका जवाब दे सकती हूँ। और अब तो मैं खुद दूसरी औरतों के लिए, उनके राइट्स के लिए, जो फिज़िकली हरास होती हैं या जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं, उनके लिए मैं अब लड़ती हूँ। तो ये हिम्मत भी मुझे शायद उसी फील्ड में से कुछ लोगों में से आई है, मेरे कोलीग में से, मेरे कुछ सीनियर्स में से आई है। लॉ की फील्ड में शुरू में जब आप पढ़ते हैं तो जो प्रोसीजर है कि कोर्ट में किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, चीज़ों को लेके चलना है, वो हमें पढ़ाई के दौरान चीज़ें नहीं सिखाई जाती। हमें सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल वर्क बहुत कम होता है, ज़्यादा नहीं होता। इसीलिए ही फिर जो यंग एडवोकेट्स होते हैं वो जब बाहर आते हैं, ग्रेजुएट होके यूनिवर्सिटीज़ से और इदारों से निकलते हैं, तो उन्हें बाहर जाके फील्ड में बहुत सी मुश्किलातों को फेस करना पड़ता है। और जब आपको प्रोसीजर का नहीं पता होता तो फिर क्लाइंट्स आपके पास नहीं आते हैं। वो एक्सपीरियंस, वो तजुर्बा हासिल करने में आपको 2 साल से 3 साल का अरसा लग जाता है। तो ये जो बीच वाला अरसा है, इसमें क्योंकि सिंध के बहुत से शहरों में जो नौजवान हैं वो लॉ की तालीम हासिल करने के लिए कराची का रुख करते हैं। यहाँ पे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, सिंध के दूसरे शहरों में कॉलेजेस हैं, लेकिन इतने अच्छे से वहाँ पे प्रॉपर तरीके से क्लासेस नहीं चलते, तो फिर नौजवान इस तरफ आते हैं। और पढ़ाई पूरी करने के बाद भी उनका यही इरादा होता है कि लॉ की प्रैक्टिस को यहीं से ही कंटिन्यू किया जाए। तो फिर इंडिपेंडेंटली बैचलर यहाँ पे रह के अपने जो आपके रिसोर्सेज हैं, आपकी जो अर्निंग है, वो बिल्कुल नहीं हो पाती है। फिर उसमें आप मेंटली जकड़ के आप रह जाते हो कि आपको अपने फाइनेंस की चीज़ें देखनी है, आपको अपने अखराजात भी देखने हैं कि आपको अपना रेंट पे करना है, आपको अपने दूसरे जो एक्सपेंसेस हैं वो भी देखने हैं, और इस बीच में फिर आपको अपनी प्रैक्टिस पे भी ध्यान देना है। तो इस बीच में आप मेंटली इस
चीज़ के लायक ही नहीं रहते कि आप कोई रिसर्च कर पाएँ या अपनी फील्ड में ग्रो कर पाएँ। तो ये हमारे 2 से 3 साल इनिशियल जो एक फ्रेश ग्रेजुएट के होते हैं वो इसी एक दायरे में गुज़र जाते हैं हमारे, एक तरह से ज़ाया हो जाते हैं। और फिर जाके 3 साल बाद जब हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस आ जाता है तो हम ग्रो करते हैं, फिर हमारे पास क्लाइंट्स आना शुरू होते हैं और अपना काम आता है और फिर हम कोई अपना चैम्बर या ऑफिस खोलने के लायक बन पाते हैं। इस वक्त मेरे पास जो ज़्यादातर केसेस हैं वो फैमिली केसेस हैं। ज़्यादातर मैं खुद भी उनमें इंटरेस्ट लेती हूँ, क्योंकि जो फैमिली केसेस में फ़ीमेल्स आके जो रुजू करती हैं वो ज़्यादातर उनकी भी यही डिमांड होती है कि कोई फ़ीमेल एडवोकेट उन केसेस को देखे। तो मुझे जो एक शॉकिंग बात लगती है कि 20-20 साल की लड़कियां होती हैं जिनको उनके ही हस्बैंड तलाक दे देते हैं या वो खुद खुला के लिए कोर्ट से रिजू करती हैं। जो 2 कपल हैं उनके बीच में जो बच्चे हैं वो बहुत बुरे तरीके से मुतासिर होते हैं, वो उस तलाक के नतायज भुगतते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। जेन्युइन केसेस में अगर एक औरत के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, घरेलू तशद्दुद हो रहा है, हस्बैंड मार रहा है, अगर उस हालत में अगर कोई औरत खुला के लिए कोर्ट में आती है फिर तो बात समझ में आती है। लेकिन 20-20 साल की लड़कियां आ रही हैं और इशू क्या होता है, मामूली सी बात होती है तलाक देने के लिए कि मेरी बीवी 2 बजे उठती है, खाना नहीं बनाती, मैं ऑफिस जाता हूँ तो भूखा चला जाता हूँ और मुझे ठीक से ट्रीट नहीं करती है, तो इसीलिए मैं उसको तलाक दे रहा हूँ। औरत शादी करके आ रही है और अगर वो एडजस्ट नहीं हो पा रही है अपने घर में, तो मेरे ख्याल से उसके ससुराल की पूरी फैमिली का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो मेंटली प्यार से उसको ट्रीट करे और उसको टाइम दे, ताकि वो उस फैमिली में, उस माहौल में, उनके घर में थोड़ा सा ढल सके और उस फैमिली को ओन कर सके। फैमिली कोर्ट्स जो हैं वो फुल हो चुकी हैं, जो खुला के केसेस हैं या जो बच्चों की कस्टडी के केसेस हैं, बहुत केसेस आ रहे हैं और इस प्रैक्टिस को हमें कम करना होगा, रोकना होगा और वो हम मिल के रोक सकते हैं। सिंध में डोमेस्टिक वायलेंस पे एक पूरा एक्ट बना हुआ है, एक कानून बना हुआ है, लेकिन पुलिस जो है वो उसको क्रिमिनल केस की तरह ट्रीट ही नहीं करती है। अगर कोई तशद्दुद ज़दा औरत थाने चली भी जाती है तो फैमिली पुलिस जो है वो उस औरत को ये कह के वापस कर देती है कि ये फैमिली केस है तो इस पे हम कुछ नहीं कर सकते, इस पे हम एक्शन नहीं ले सकते। तो क्रिमिनल केसेस में जो कन्विक्शन का रेट कम है, वो इसका एक सबब ये भी है कि पुलिस प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है और दूसरा जो विटनेसेस हैं, एक क्रिमिनल केस में विटनेसेस का बहुत बड़ा रोल होता है। वो विटनेसेस पुलिस के पास तो अपना बयान रिकॉर्ड करा देते हैं, लेकिन कोर्ट में आने से वो बहुत कतराते हैं, वो पूरे प्रॉपर तरीके से हर पेशी पे नहीं आते हैं और पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं करती है, वो फैक्ट फाइंडिंग सही से नहीं करती है। तो इस वजह से भी कन्विक्शन का जो रेट है वो कम हो जाता है। ज़्यादातर तो विटनेसेस ये करते हैं कि वो अपने बयान से ही मुकर जाते हैं, फिर जाते हैं, तो उस पे एक क्रिमिनल केस पे बहुत बुरा असर पड़ता है। और वहीं से अगर कोई एक भी डाउट क्रिएट हो गया क्रिमिनल केस में तो आपका कन्विक्शन का जो रेट है, जो सज़ा का रेशो है, वो कम हो जाता है। एक ये बहुत बड़ी वजह है विटनेसेस का रोल और पुलिस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। हमारे जो देही इलाके हैं वहाँ की पुलिस इतनी कोऑपरेटिव नहीं है। यहाँ तक कि जो चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं, अर्ली चाइल्ड मैरिजेस, वो तो उनको भी ऑफेंस क्राइम कंसीडर नहीं करते हैं, उन पे भी एक्शन नहीं लेते। हालांकि उस पे भी एक प्रॉपर लॉ बना हुआ है कि 18 साल से कम की किसी भी लड़की की आप शादी नहीं करा सकते, वो इलीगल एक्ट है, उस पे सज़ा हो सकती है 3 से 4 साल की। लेकिन हमारे यहाँ आप देखते होंगे कि जो गाँव हैं या देहात हैं वहाँ पे या शहरों में भी 18 साल से कम लड़कियों की शादी करा दी जाती है।
عورتوں کے حقوق کے لیے ہی کام کرنا چاہ رہی ہوں، میں اپنی لائف ان کے لیے سرو کرنا چاہ رہی ہوں بینگ ایڈوکیٹ. اور جو ایکٹس ہیں ہمارے ان میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، وہ ہونی چاہیے، اس پہ کام کرنا ہے مجھے. اور دوسرا میں تشدد فری انوائرمنٹ چاہتی ہوں، خاص کر کے عورتوں کے لیے. ایک ایسا ماحول آپ کریٹ کریں جس میں آپ کی بیٹی، آپ کی بہو، آپ کی بیوی کھل کے سانس لے سکے، وہ پڑھ سکے، اس کو آزادی ہو.